now we did the 2 sessions. I think in that we have studied about the detailed breakup of all the cost expenses. So let's take one brief revision part. First, what we did, cost have divided into 2 parts. Yes, there is a direct cost and then indirect cost, right? Yes. Then what we did, direct costs are divided into 3 parts, right? What was direct material, direct wages and direct expenses. Then what we did, factory overheads, office and administrative overheads, and then selling and distribution overheads. तो इतना हमने पहले किया था. Okay. Then direct material में all the raw material part you know already, or remember carriage inward, carriage inward, that is also part of raw material. और भी बहुत सारे डिटेल है. Then direct wages, that is for productive wages. Productive wages था. Direct expenses, chargeable expenses. Chargeable expenses. Special license fees. Subcontracting charges. These are the items in the direct expenses. In the factory overhead, all the factorial part, factory rent, factory lighting, power and fuel, consumables, etc. Office administrative, all the official items. In factory, remember depreciation on plant, plant machine used in the factory. That's why. So depreciation plant, machinery, repair. Office administrative, salary, preliminary expenses, professional fees, legal charges, etc. And in fact, with the depreciation on computer, office building. In selling distribution, salesman salary, salesman commission, one word is the carriage outward, remember. In direct material part, there is a carriage inward. Or in selling distribution, there is a carriage outward, remember. Okay. So, that part we did that. Okay, just a breakup part, revision. Remember the important point is the selling distribution. Selling distribution, remember. What is that? If given the traveling expense, only traveling expense, remember. Listen carefully. If the traveling expense of director given, director, so we will write in the office and administrative. बच्चों ध्यान समझना कि अपने को ये सब ब्रेकअप होना चाहिए सम्स करने के लिए. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर गिवन, सो लेट टू राइट दैट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर परचेज मैनेजर गिवन, परचेज मैनेजर, परचेज मैनेजर. If the traveling expense given for purchase manager, who will purchase? That is raw material. Sugar, direct material. Yes, direct material. Remember, traveling expense for purchase manager. Purchase manager. There is a different department. Remember. So purchase manager, sales manager. If the purchase manager, what is the duty of purchase manager? To purchase the raw material. That's why direct material. Traveling expenses for sales manager. Sales manager. Tell me. Anybody? Yes. What is that? Sales. Sales. Remember. Selling and distribution overheads.
So if the traveling expense given of director, we will write in the office and administrative. If the selling and expenses for purchase manager, we will write in the direct material. If the traveling expenses for sales manager, we will write in the selling and distribution. क्या कुछ के दिमाग में आ रहा है कि और एक फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? यस, इज दैट कि ओनली अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है तो सर क्या करेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस ओनली, नथिंग इज वर्क डायरेक्टर परचेज मैनेजर सेल्स नॉट गिवन, खाली दिया रहेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो क्या करना है? तो भी इसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ओनली गिवन, ओनली ट्रैवलिंग, नथिंग गिवन है द डायरेक्टर परचेज मैनेजर सेल्स में, कुछ भी नहीं दिया, खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर डायरेक्टर गिवन, वी विल राइट इन द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन फॉर purchase manager, we will write in the direct material, and traveling expense given for sales manager, we will write in the selling and distribution. So remember, you only this one is a new point. Remember. Okay. Then what we did in the last two parts, we have done the fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. Right? Fixed cost it depend on timing, not in the production part. Variable cost it depend on production, and the semi partly variable or partly fixed. Okay, तो बच्चे ये सब था हमारा पहला तो सेशन का पार्ट है। Okay, let's go to new part. What are the important one now? First is CPU. जब मैं सीपीयू फर्स्ट टाइम टीवाईकॉम इस लेक्चर में बोलता हूँ तो सीपीयू मीन बच्चे लोग कुछ कंप्यूटर में चले जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट इन कॉस्ट शीट सीपीयू का मीनिंग है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना कॉस्ट। लाइक आप लोग बोलते पेन 5 रुपए का लेक्सी पेन है, तो क्या लगता है लेक्सी कंपनी खाली एक पेन बनाता रहेगा? No. They produce the 1 lakh pen. 1 lakh pens. तो 1 lakh पेन एक साथ बना रहेगा, एक लॉट पे बना रहेगा, तो उसका पूरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ रहेगा वो लोग चेक करते हैं। That's the total cost of 4,50,000। 1 लाख पेन बनाने के लिए सारा मटेरियल, लेबर का चार्ज वो सब ऐड करके कितना आया? 4,50,000। और ऑब्वियसली भाई बिजनेस का एक ही मतलब है प्रॉफिट, तो उसमें उसने अपना 50,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 5 लाख। और 5 लाख रुपीज में उसने 1 लाख पेन बनाया, तो आप बताओ एक पेन का कितना पड़ेगा? 5 रुपए। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट पर यूनिट। द कॉस्ट शीट में इन्वॉल्व होगा एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा। आपको बता क्या कि आपने ये 5 रुपए आने के लिए 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, व्हाट इज द 5 लाख टोटल अमाउंट, व्हाट इज 1 लाख? ये 1 लाख पेन था। सो व्हाट विल बी द फार्मूला? तो सीपीयू का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सीपीयू इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। बच्चों तो उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जो नोट दिया हूँ, मतलब जेरॉक्स मीन्स व्हाट्सएप पे सेंड किया और पिक, उसमें यहाँ पे एक ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं उसको भी वेट करता हूँ, बाद में अभी नेक्स्ट सेशन तक जब आए तो मैं बताऊंगा उसको वो क्या है उधर करके, तो वेट दैट। जस्ट एट द मोमेंट रिमेंबर सीपीयू इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। Below that there is one information given, I will tell you later, don't worry. There is one more formula CPU, total cost upon number of units sold. So there is a two formula. First is CPU का formula है total cost upon number of units produced, and the next one is total cost upon number of units sold. Now सर अब दो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे वहाँ, वो इसीलिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ ब्रैकेट के अंदर।
और जब मैं आपको इसका फॉर्मेट जब बताऊंगा तो आई विल टेल यू। अब इतना यहाँ पे आपने यूनिट प्रोड्यूस, कितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे आप हाउ मेनी यूनिट यू हैव सोल्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितना आपने प्रोड्यूस किया पूरा का पूरा सोल्ड होता रहेगा। ओके, तो रिमेंबर देयर इज द प्रोडक्शन यूनिट, हियर इज द सोल्ड यूनिट। इसका यूज कब करना है, जस्ट वेट फॉर। तो बच्चों सीपीयू का फॉर्म, सीपीयू मींस कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, डोंट से द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है आप लोगों का, जब कंप्यूटर के हिसाब से पूछेंगे तभी आप ये बोलना, जब यहाँ इस कॉस्ट के हिसाब से पूछे तब वो बोलना। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना कॉस्ट है। देखिए टू फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। आपके फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ रहेगा उससे डिवाइड करते हैं। एंड द अदर फॉर्मूला इज द टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना आपने सोल्ड किया उससे डिवाइड करना। अब ये दोनों फार्मूला का यूज कब करना है, थोड़ा पेशेंस रखो, जब हम फॉर्मेट पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हम लोग, फार्मूला और इक्वेशन होते हैं। इक्वेशन, यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट सोल्ड, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ना, सो यूनिट सोल्ड इक्वल टू क्या होता है, यूनिट प्रोड्यूस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक, क्या फॉर्मूला देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास लास्ट ईयर का बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वही क्या होता है अपना ओपनिंग स्टॉक। मैंने आप लोगों को 12 में इंफॉर्मेशन दिया था, अपने सुबह 7 बजे का क्लास रहता है, और गोल्डी नकड़ू भाई बहुत भूख लगा, पहले मेरे को एक वड़ा पाव दो। तो सुबह 7 बजे नकड़ू भाई बना के रखे भी रहेंगे, तो जो पिछले दिन का रात का बच गया रहेगा वही सुबह गर्म करके देने वाले हैं। तो जो रात का बच गया अगले दिन क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो आपके गोदाम में पहले का कितना पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल अपने पास ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट। ओके, आपने पूरा फुल उस फेज में पीरियड में और वो एक दिन में आपने कितना प्रोड्यूस किया है, तो आपने प्रोड्यूस किया से एग्जाम्पल 10,000 यूनिट, तो आपका 500 यूनिट पहले का था एंड 10,000 यूनिट न्यू प्रोड्यूस कर लिया, राइट। एट द एंड ऑफ द टाइम आप देख रहे हैं आपके गोदाम में, एट द एंड ऑफ द टाइम आपके गोडाउन में क्या है, 1,000 यूनिट पड़ा हुआ भी रिमेन। पहले से था कितना 500 यूनिट, कितना आपने प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट, और लास्ट में आपने जब जाके देख रहे थे आप गोडाउन में कितना काउंटिंग कर रहे थे, कितना बड़ा है रिमेनिंग 1,000 यूनिट, तो आप बता मतलब कि कितना आपने सोल्ड किया रहेगा। एक लॉजिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, फॉर्मूला लगाना बता के आने। सोचो 500 यूनिट आपके पहले से था, देखो ये 500 यूनिट पहले से था, क्या होता है इसको ओपनिंग स्टॉक, राइट। 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, तो कितना गया टोटल 10,500। अभी भी आपका 1000 गोदाम में पड़ा हुआ है, तो आपके गोदाम में 1000 पड़ा हुआ है, कितना बाहर गया रहेगा, 10,500 माइनस 1,000, तो कितना आ गया 9,500 यूनिट। इसका मतलब आपने 9,500 यूनिट सोल्ड किया रहेगा। सो आपने प्रोड्यूस किया 10,000 नंबर, हाँ, लेकिन सोल्ड कितना किया 9,500। अगर दो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसके पहले जो मैंने फार्मूला बोला, एक जगह मैंने प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे और अदर वन सोल्ड जो है वो यही फर्क है, वो तो बाद में आएगा। कि क्या फार्मूला था, यूनिट सोल्ड इक्वल टू
यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके बच्चों, ये था यूनिट सोल्ड का फार्मूला. यूएस इक्वल टू यूपी ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. दैट इज फार्मूला ऑफ यूनिट सोल्ड. ओके बच्चों, A1 एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल, let's take the opening stock. You got 1,000 units और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 2,000 यूनिट और आपने सोल्ड किया है 15,000 यूनिट. पहले से कितना था आपके पास 1,000. आपके गोदाम में कितना पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2,000 और आपने सोल्ड किया है 15,000. हाउ मच यूनिट आपने प्रोड्यूस किया रहेगा? क्या ये कर सकते हम लोग? यस. तो सेम फार्मूला पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. यूएस इक्वल टू यूएस क्या है? यूनिट सोल्ड. यूपी यूनिट प्रसाद यूनिट प्रोड्यूस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. पुट ऑल द थिंग्स. तो ओपनिंग कितना आ गया बच्चों? 1,000. क्लोजिंग 2,000. सोल्ड 15,000 और यूनिट प्रोड्यूस नहीं मांगे. क्या करेंगे अभी? बचपन में चले जाओ. यस, 15,000 माइनस 1,000 प्लस था तो माइनस याद है बचपन का कुछ और ये प्लस 2,000. सो यूनिट प्रोड्यूस आ गया कितना? 14 and 2 16,000. तो आपने 16,000 का प्रोडक्शन किया रहेगा. तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई करके हम लोगों को समटाइम क्या रहेगा? यूनिट प्रोड्यूस दिया रहेगा, यूनिट सोल्ड मिसिंग रहेगा, और समटाइम यूनिट सोल्ड रहेगा, यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग रहेगा. समटाइम ऐसा भी हो सकता है यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड रहेगा और ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहेगा. तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या फार्मूला बच्चों? यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. अब मैंने एक और फार्मूला आप लोग को दिया रहेगा, कोई फार्मूला को थोड़ा सा एडजस्ट करके आप चाहो तो यही फार्मूला आपके तो भी चलेगा. क्या फार्मूला में एक और दिया आप लोगों को? देखो ये प्लस है ना, उसको इस साइड लेके आने जाएगा माइनस और वो माइनस किस साइड आएगा? प्लस. तो यूनिट प्रोड्यूस का फार्मूला बन जाता है यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग और प्लस क्लोजिंग. ये कोई नया फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला को एडजस्ट करते हैं. तो हमने ये प्लस माइनस को इस साइड लाया और डायरेक्ट कर दो. कितना यूनिट सोल्ड? 15 माइनस ओपनिंग कितना है? 1. क्लोजिंग कितना है? 2,000. कितना आ गया बच्चों? 14 and 2 16,000. तो सेम फार्मूले को जस्ट ट्रांसफर किया है और एक नया फार्मूला बन गया. तो यूएस इक्वल टू यूपी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और यूपी इक्वल टू यूएस माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग. रिमेंबर वहाँ पे ओपनिंग ऐड है, क्लोजिंग लेस है. यहाँ ओपनिंग लेस है और क्लोजिंग ऐड है. ठीक है बच्चों, एक फार्मूला हम लोग को सम के लिए चाहिए रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों फार्मूला है. इसके पहले मैं थोड़ा सा एक वर्ड बोलता हूँ, TQM. व्हाट डू यू मीन बाय TQM? कॉमर्स में था कोई याद किसी को मालूम रहेगा? TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. दोनों ये कॉस्ट से मतलब नहीं इसका, ठीक है ना. और कॉमर्स एसवाई में था TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इट इज अप्रोच ऑफ जापान. वो लोग उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना रिक्वायरमेंट है ना. हमारे इंडिया की तरह नहीं कि सुबह से समोसा पाव गरम बना के रखा, रात तक वही बिकते रहो. वहां पे जस्ट इन टाइम अप्रोच होता है. आप जाओगे, आप ऑर्डर करो, अपने हिसाब से वो लोग बना के देंगे. मीन्स दे डू नॉट मेंटेन द स्टॉक. मेरा बोलने का यहाँ पे मतलब क्या है? सर बोलेंगे सर आप कोर्सिंग चलेगी सर? नो. आई जस्ट वांटेड टू से दैट अगर मान लो तो कोई कंपनी ऐसा है जो ओपनिंग स्टॉक
और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मेंटेन नहीं करता, नो मेंटेनेंस। इट मीन नील, तो लोग ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होता और क्लोजिंग स्टॉक। आपके इस लॉजिक, जब क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा ही नहीं तो अगले दिन कुछ बचेगा ही नहीं। जितना बनाता हूँ मैं पूरा का पूरा सोल्ड करता हूँ, उसको बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग नील। अब ये क्या कॉस्ट से रिलेटेड है। अगर एग्जाम में समझ लो कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी 0 है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी 0 है, दोनों 0 है और नॉट गिवन, बोथ आर नॉट गिवन, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका पहले का भी नहीं है, लास्ट में भी कुछ नहीं बचला, मतलब क्या बचो? यस, यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड। जितना आपने बनाया था उतने क्या हुआ? सोल्ड हो गया। कुछ पहले का नहीं है, कुछ लास्ट में नहीं है। तो जब भी अगर सब में ओपनिंग क्लोजिंग नील है और ओपनिंग क्लोजिंग नॉट गिवन, तो समझ लेना है कि यूनिट सोल्ड और प्रोड्यूस दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। चेक कर लेते। यूनिट प्रोड्यूस 10,000, ओपनिंग 0, क्लोजिंग नॉट गिवन, मतलब 0। तो अपना कौन सा फॉर्मूला था पहले वाला? यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेक करो, यूनिट प्रोड्यूस 10,000, ओपनिंग 0, क्लोजिंग 0, कितना आ गया आंसर? 10,000। मतलब प्रोड्यूस इक्वल टू सोल्ड। सो इस तरह से हमारे पास कितने फार्मूला गए? 5 फार्मूला। और जब पहला फार्मूला था क्या था? सीपीयू का फार्मूला था अपना टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यस 1। सेकेंड, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। थर्ड, यूएस इक्वल टू यूपी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फोर्थ, यूपी इक्वल टू यूएस माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। एंड द फिफ्थ, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग 0 nil, इट मीन द यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ठीक है बच्चों, ये 5 फार्मूला में जब सम करेंगे तो यूज होगा। तो इफ द ओपनिंग क्लोजिंग इज नील और नॉट गिवन एट ऑल, इट मीन द ओपनिंग क्लोजिंग बोथ आर क्या है? इक्वल रहेगा। ठीक, ओके बच्चा, इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली हम लोग पे जा रहे हैं, ओके ना। अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है तो यू कांट डू द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, बी केयरफुल। क्या है ना बच्चों, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट द फॉलोइंग आइटम दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। कुछ ऐसे भी आइटम जिसको हम लोग कॉस्ट शीट में इंक्लूड एट ऑल नहीं करने वाले। ऑल तो आपने एसबीकॉम में मैनेजमेंट चैप्टर किया है, फाइनल अकाउंट किए, तो सब में कुछ किए, लेकिन इसको कुछ आइटम है जो हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करने वाले थे। वेरी क्लियर रखवा। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल आइटम और फाइनेंशियल एक्सपेंसिव। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बोला था फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस। यहाँ बोला था मैंने ऑल एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड होता है और हियर ओनली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है। हियर देयर इज अ डिफरेंस। तो देयर इज फर्स्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, नॉट इंक्लूडेड। कॉस्ट शीट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हम। तो पहला आइटम है फाइनेंशियल एक्सपेंस, और फाइनेंशियल में बहुत सारे एक्सपेंसेस है। पहला उधर दिया हुआ बैंक इंटरेस्ट। सो बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करने लगा। बैंक इंटरेस्ट छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, खाली इंटरेस्ट वर्ड भी आए ना तो कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जस्ट इग्नोर करना। इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मली फाइनेंशियल आइटम है, तो कॉस्ट शीट में उसको एलर्जी है, इंटरेस्ट को इग्नोर। फिर फाइन एंड पेनल्टी। फाइन एंड पेनल्टी, किसी तरह फाइन और पेनल्टी पार्ट होता है वो इलीगल एक्टिविटीज में है, तो उसका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। तो फाइन एंड पेनल्टी।
देन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई भी असेट बेच रहे हो, मान लो 50,000 का मशीन था, उसको मैंने बेच दिया 45,000 में, तो कंपनी को 5,000 का क्या आ गया लॉस। ये लॉस मशीन की वजह से हुआ है, ये लॉस प्रोडक्शन की वजह से फैक्ट्री के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स विल नॉट इंक्लूडेड। तो असेट को कोई लॉस हुआ तो दैट विल नॉट रिकॉर्डेड। देन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थ्रेट, लॉस ऑन, याद है कुछ लॉस बाय, यस, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थ्रेट, हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट कर रहे हैं कि अपना कितना प्रोडक्शन हुआ और उस पर कितना एक्सपेंस हुआ है। तो फायर लगा, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, ये डिड नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, तो इसको भी इग्नोर। देन द लीगल चार्जेस फॉर डिफेंडिंग द क्रिमिनल केसेस। कोई आपने क्रिमिनल केस मतलब क्या है, इलीगल वर्क कर लियो और आप उसको डिफेंड करने के लिए कोई वकील अपॉइंट किया, एग्जाम में अगर आपने को लीगल चार्जेस दिया, लीगल चार्जेस, तब तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में डालेंगे। लेकिन जब क्लियर नहीं दिया लीगल चार्जेस फॉर डिफेंडिंग क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। वकील का खर्चा आपने दिया है, सर ये वकील का खर्चा भी तो इससे होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लीगल करते हैं लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है, तो उसका एक पार्ट है लीगल चार्जेस। ऐसा नहीं कि सारे लीगल, चाहे वकील का कोई भी खर्चा हो तो मतलब गलत काम के लिए होता है, कुछ अच्छे काम के लिए भी देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस लाइक है, तो ये ऑफिस में जाएगा। और जो दिया है लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल केसेस, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, दैट विल नॉट रिकॉर्ड इन द कॉस्ट शीट। देन बच्चों कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नॉर्मली कैश डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले, ओनली डिस्काउंट दिया रहेगा, ओनली डिस्काउंट, तो दैट विल गो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली डिस्काउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन उधर दिया रहेगा और कैश डिस्काउंट, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इग्नोर करेंगे, दैट विल नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। देन डोनेशन, डोनेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पार्ट। आप कुछ डोनेट करते हो तो ये आपका पर्सनल रीजन है, ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं होता है, तो डोनेशन को भी हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाले। देन डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर इश्यू कर उस पर डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस हो रहा है, ये सब फाइनेंशियल आइटम। आप एक लॉजिक याद रखो, कुछ भी आया शेयर्स एंड डिवेंचर से रिलेटेड, इसको डायरेक्टली इग्नोर करना है। तो ये बच्चों पहला क्या हो गया, फाइनेंशियल आइटम, तो मिनिमम पॉइंट क्या है इसमें, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लीगल चार्जेस ऑफ क्रिमिनल केसेस, कैश डिस्काउंट, शेयर एंड डिवेंचर एक्सपेंसेस, ये सब फाइनेंशियल पार्ट है, तो दैट विल कम इन द अकाउंट 1 बट नॉट कम इन द अकाउंट 2, दैट इज कॉस्ट शीट। ओके बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सेकेंड, एकदम स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट का मतलब क्या वर्ड बोला था, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, इसका मतलब इसके अंदर खाली एक्सपेंस आने वाला है, दैट मीन्स वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द एनी इनकम, किसी भी तरह का इनकम आए बच्चों उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हम लोग, फिर ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग, लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब रिकॉर्ड हटा लिए गए, सब क्या रिसीव होता है, इनकम। तो रेंट रिसीव किया आपने, कमीशन रिसीव किए, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव की जो करके वर्ड आता है अर्न। तो किसी भी तरह का इनकम, और क्या इनकम हो सकता है बच्चों, यस, क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट बेच के कुछ प्रॉफिट हो आपको, ये भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है, डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर का आपको डिविडेंड मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड इनकम, दैट इनकम विल नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द कॉस्ट शीट। और एक था बच्चों क्या था, बैड डेट रिकवरी, कुछ याद है, जो पैसे लॉस हो गया बाद में पैसे मिल रहा है, बैड डेट रिकवरी, तो दीज आर द आइटम। रिमेंबर एनी इनकम रहेगा ना तो कॉस्ट शीट में लिखना चाहिए।
थर्ड पॉइंट है बच्चों तो थर्ड पॉइंट है अप्रोप्रिएशन। कुछ याद है अप्रोप्रिएशन मतलब? यस, SY बीकॉम में कुछ याद करो मैनेजमेंट चैप्टर में वर्टिकल स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट लॉस के अंदर था लेस अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब अप्रोप्रिएशन के आइटम्स में इंक्लूड है। अप्रोप्रिएशन आता क्या क्या है? इंट्रीम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, उसके बाद फाइनल डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। दैट 3 आइटम्स कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। जो लोग एसपी स्टूडेंट रहेंगे, 12th में एसपी लिए रहेंगे, वो लोग इंट्रीम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड का कुछ मतलब रहे मालूम। व्हाट इज द मीनिंग होता है? जब हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर when the at the end of the year dividend declare, it is called a proposed dividend और final dividend। साल के अंत में पूरा अकाउंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट लॉस के बारे में नॉलेज हो गया एंड देन डिक्लेयर करते हो तो उसको वर्ड होते एंट्री क्या फाइनल प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। बट इन बिटवीन द ईयर, इन बिटवीन साल के बीच में, इन बिटवीन द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर, तो इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग इंट्रीम डिविडेंड। कोई भी चीज बीच में करते हैं तो उसको वर्ड बोलते हैं इंट्रीम, और एट द एंड करते हैं तो उसको बोलते प्रपोज और फाइनल। और देन ट्रांसफर टू रिजर्व। आप रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ पैसे आप क्या करते हो? फ्यूचर के लिए जमा करते हो, तो किसी रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये सब फाइनेंशियल आइटम में आता है, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन कॉस्ट में नहीं आएगा। तो तीनों आइटम इग्नोर करना है। फोर्थ है बच्चों टैक्सेस। टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एडवांस टैक्स एंड obviously sales tax का sales tax. All income tax, wealth tax, advance tax, sales tax. These taxes will be not included in the cost sheet. फिर ये सब क्यों? तो इसलिए बच्चों कि हम लोग जब कॉस्ट शीट करेंगे तो पहले पूरे एक्सपेंस निकालेंगे। एक्सपेंस निकालने के बाद क्या होता है, उसके अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के बाद जितना आपने बेचा रहेगा उस पर टैक्स देगा। सेल्स टैक्स का मतलब क्या? जितना आपने सेल किया उस पर टैक्स दो। जब आपने पहले से ही टैक्स जोड़ दिया है तो फिर डबल टैक्स कैसे? यहाँ पे भी टैक्स दे दियो और बाद में बोल दो यहाँ पे भी टैक्स। इसलिए अरे टैक्स का अमाउंट हम लोग बाद में निकालते हैं, कॉस्ट शीट का कंप्लीट होने के बाद। तो रिमेंबर, तो एनी टैक्स अगर आया, इनकम टैक्स, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी, तो उसके बाद प्रॉपर्टी उस पर टैक्स। एडवांस टैक्स अभी लोग टैक्स में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का जो डेडलाइन है तो उससे पहले जब पे करते हैं उसको बोलते एडवांस टैक्स। तो दीज आर द टैक्स का आइटम भी कॉस्ट में नहीं आता है। फिफ्थ पॉइंट बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर FY में क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड। रेवेन्यू, कैपिटल एंड डिफर्ड मीन्स एनी असेट्स परचेज, असेट्स परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज। तो कोई असेट खरीद रही है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रही है, ये लॉन्ग टर्म है, तो ये सब असेट लॉन्ग टर्म असेट्स है, असेट्स है, इसको हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करने वाले। कहीं पे आपने FD किया है, फिक्स डिपॉजिट्स, दैट आल्सो विल बी नॉट रिकॉर्ड इन द कॉस्ट शीट।
6 पॉइंट है प्रोविजंस और रिटर्न ऑफ। प्रोविजन रिटर्न ऑफ। अब क्या होता है बच्चों, प्रोविजन एक्चुअली एक्सपेंस नहीं होता, हम फ्यूचर के लिए इतना रिजर्व बना कर रखते हैं ताकि कभी हो गया लॉस तो। जैसे आप करो RDD, क्या था ये, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो RDD ये रियल एक्सपेंस नहीं है, हम पहले से सोच कर रखे कि इतना मेरा लॉस होएगा, इसलिए रिमेंबर इसको प्रोविजन बोलते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है। ऑलरेडी रिजर्व फॉर डाउटफुल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिटर्न ऑफ, मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ रिटर्न ऑफ, खाली लूज टूल रिटर्न ऑफ आया ना तो रिकॉर्ड करना है, बाकी कुछ भी आया लाइक पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इसके साथ अगर रिटर्न ऑफ वर्ड आया, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, पैटर्न रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे लोग कॉस्ट शीट में। तो कॉस्ट शीट में RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड रिटर्न ऑफ द पैटर्न, कॉपीराइट, ये सब इसको रिकॉर्ड नहीं करते। एंड द लास्ट वन बच्चों, 7th वन है रिजर्व। रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, sinking फंड, प्रोविडेंट फंड, जब मैं प्रोविडेंट फंड बोलता हूँ तो कुछ बच्चों को सर आपने प्रोविडेंट फंड डायरेक्ट वेजेज में बोला था, तो द PF ऑन लेबर ऐसा दिया रहेगा, खाली प्रोविडेंट फंड क्या रहेगा तो नहीं लेना है। प्रोविडेंट फंड टू द लेबर वेजेस के साथ रहेगा तो लेंगे हम। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेड बैलेंस, ये सब हमारा रिजर्व है, तो रिजर्व इंक्लूड नहीं होता है। तो बच्चों इस 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के आइटम को अपना कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड करते नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉस्ट शीट का पार्ट है। पहला क्या था बच्चों, फाइनेंशियल एक्सपेंस। सेकंड क्या था, ऑपरेटिंग इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। थर्ड था एप्रोप्रिएशन, फोर्थ टैक्स, फिफ्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 6 प्रोविजन फंड एंड रिटर्न ऑफ, एंड 7 रिजर्व। these 7 आइटम है जो कॉस्ट शीट में एक्सक्लूड है। बच्चों अगर इतना आपको नॉलेज है तो मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट शीट का कुछ आएगा आप लोगों को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं फॉर्मेट लिखाऊंगा, फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट से पहले मुझे ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, जस्ट